It's 18 hours. Good evening, sir. Good evening, Good Ishan. evening, sir. Good evening, Chef Shankar. So I think after almost 1 month, we are coming together. Yes, Good sir. evening, sir. Good evening, Anmol. Good evening, sir. Good evening, Kriti. Right, so we will not delay further because we have time limit of 40 minutes. And today we have this very important session, SWOT analysis. I will request everyone who is not going to speak, please keep yourself in mute, particularly Ishan, because Ishan's village is always having some happenings, some procession, some music is going on. Okay, fine. So, welcome everyone to the 15th session of Body, Mind, Soul, Personality Ki Pathshala. And one name which I have given to this session is Campus to Corporate, because you all are studying in some college, some campus, and from there you are going to participate in some campus interview or some job interview, and you are going to join some corporate job in your future. Three things which I keep on pushing: attitude, skill, and knowledge, which will be always going to support you, benefit you. That always have the right attitude, and with that right attitude, try to gain the right set of knowledge. And with the right set of knowledge, you are going to convert that into the right skill, and that skill is going to make you worth in your career, in your future. Fine. So let's start what we have today. Today we have something called SWOT analysis. SWOT is a very popular terminology in terms of development of personality. And S stands for strength, stands for weakness, O is opportunity, and T is threat. 1 minute. Right. So that is called SWOT analysis. And anyone who is completed 12th and either it is in college or going to be appearing in job interviews, they should be having a fair idea of SWOT analysis so that whenever they are planning for their career, their future, they can find out the path which they are choosing, which they have chosen. Is it going to support them? Are they on the right track? What else? What else skills they need to accumulate? They need to gather. Fine. So SWOT analysis is something which bring clarity and direction to your career. So now we are going to move further. Fine. So I have named it personal SWOT analysis. Generally, when you are heading a company, you are having you are the CEO or the vice president of a company. You also do SWOT analysis of your company. So basically, we can do SWOT analysis of individual also and companies also. Means we check what strengths we have, what weaknesses we have, what opportunities we have, and what threats we have in our competition, in our surrounding. So one by one, we are going to discuss. So first is why this personal SWOT analysis important. The first point, if you see, to brand image and success unique to you. Now, this is one important point that we have only one life. Sometimes what happens, we choose a career
just by copying somebody else or just by following someone else, right? And after pursuing that career for 2, 3 years, 5 years, and then we think, oh, I have gone into a wrong field. This was not meant for me, right? Because we have not evaluated ourselves. We have not checked that what skills I have, what strength I have, what weaknesses I have. So if you want to have your brand image and success, which is unique to you, means suppose if Dheeraj Srivastav is there, so if you say Dheeraj Srivastav Pathshala Club, so I have my own image, my own unique image is there. Like if I talk about Anmol, so she's developing herself as a dietitian, so she's having a unique image. Shankar is developing himself as a chef, right? Similarly, Ishan is having something in his mind. So you have to find out that with the help of this SWOT analysis, are you going to pursue a path, a career which is really unique to you, means which is going to give you the purpose of your life. In this, your SWOT analysis is going to help you to identify internal strengths and weaknesses. Now, in SWOT analysis, you will see that there are two parts of it. One is internal and second is external. Now, strength and weakness, मेरी मजबूती, जो मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं और जो मेरी कमजोरियां हैं, they are internal. इसमें और किसी का कोई ज्यादा योगदान नहीं है. Means I have to work upon my strengths and my weaknesses. So सबसे पहला काम है कि I have to identify कि मेरे strengths क्या हैं और मेरे weaknesses क्या हैं. And again, you have two things in this SWOT analysis, which is external: opportunity and threat. क्या अवसर है और क्या खतरा है. Like if you take my example, I was conducting workshop in different schools and colleges. Now, because of this lockdown, now schools are closed. So I have lost all my opportunities from last 1.5 year. I am hardly getting any workshop in a school. So this is not in my control. This is a threat for me because the area in which I'm working, that area is facing a problem, right? But I have an opportunity. Even if the schools are closed, with the help of my Zoom platform, my online classes, I can connect and I can earn my livelihood. I can keep myself engaged. I can teach my students, right? So opportunity and threats, they are external. उस पे बहुत ज़्यादा मेरा control नहीं है. But I have to keep an eye on them. उस पे ध्यान रखना है कि भाई मार्केट में अब क्या अवसर मिलने वाला है मेरे को और कहाँ खतरा मेरे को मिलने वाला है. But strength and weakness, they are my internal things. इस पे सिर्फ मुझे काम करना होगा, मुझे आइडेंटिफाई करना होगा. फाइन. सो एंड वंस यू हैव चेक्ड कि आपका ब्रांड इमेज क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि मुझे अपने आप को सोसाइटी में, मार्केट में कैसे प्रोजेक्ट करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कैन नॉट डू दैट फॉर यू. So if Anmol is doing this from last 200 plus days, it's great. It's great. Every day she is thinking कि आज मैं क्या लिखूं. And sometimes I put a comment, sometimes I like, sometimes I don't like. So मेरे like करने और मेरे comment करने से उसके effort में कहीं कुछ कमी नहीं आने वाली है. Because वो जो उसका image है, that is her image. Right? ये मैंने जान करके मैं ये point बोल रहा हूँ because sometimes we think कि अरे बाल इतना अच्छा पॉइंट लिखा था, आई टैग, मैंने सर को टैग भी किया, सर ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया उसके ऊपर में, राइट? इट विल कीप ऑन हैपनिंग कि आपके एफर्ट्स को शायद लोग पसंद ना करें, लोग लाइक ना करें, लोग बिजी हो जाएं, लोग किसी प्रॉब्लम में रहें, बट जो मेरा इमेज है, जो मेरा ब्रांड है, जो मेरी मार्केटिंग है, मैं उस पे काम करता रहूंगा. Whatever comes in my way, I don't care, right? So first thing is that मैंने अपना purpose देख लिया. I have chosen my brand image, which type of success I am looking for in my career, वो देख लिया मैंने. I have checked my internal strength, my weakness. If you have time, if you are really serious, I will request you can note down. Take one diary and note down कि these are my strengths, these are my weaknesses. As of now, in the month of May, these are my opportunities, these are my threats. Like
कोविड-19 अभी पूरे अपने फुल स्पीड में है. सो फॉर डाइटिशियंस अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि एनीबॉडी हु इज सफरिंग फ्रॉम कोविड और हु इज ट्राइंग टू कीप अ गुड हेल्थ, उनको हम कोई ना कोई डाइटरी सेशंस दें, राइट? तो वहां वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अभी मौका मिला हुआ है. आई कैन इन कैश दैट अपॉर्चुनिटी. और एक बार जब मैंने इन सबको ठीक से देख लिया, देन आई कैन फॉर्मुलेट माय सक्सेस स्ट्रेटजी. अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे हर दिन क्या करना है, अपनी मार्केटिंग के लिए क्या करना है, अपनी ब्रांडिंग के लिए क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए क्या करना है, अपनी वीकनेस को रिमूव करने के लिए क्या करना है. सो आई हैव टू नाउ कीप ऑन वर्किंग ऑन ऑल दीज aspects. Now this is a simple you can say a box which will give you the clear picture of SWOT analysis. Internal, external. इंटरनल में क्या क्या है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. स्ट्रेंथ हमारे लिए हेल्पफुल है, वीकनेसेस हार्मफुल है. डाउनसाइड एक्सटर्नल में क्या है, अपॉर्चुनिटीज है जो कि हेल्पफुल है, एंड थ्रेट्स है जो कि हार्मफुल है. So always I have to keep my eye on these four things: my strength, my weaknesses, opportunities and threats. और आपको मानना पड़ेगा कि like suppose COVID-19 has come. It has come for everyone. If I am suffering, everyone is suffering. So maybe possibility hai ki there is someone who is working in pharma company and he is having a nice opportunity. He is earning money. He is prospering. He is expanding. I'm in a education industry जो कि अभी down जा रहा है. But it's okay. It's okay. I will try to find out कि मैं कैसे अपने threats को कम से कम करूं, and whatever opportunity I can develop and I can encash this present condition. एक अच्छे फाइटर का जो साइन है वो यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, he or she will always bounce back. Fine. So this is a simple thing. Internal समझ में आ गया आपको, external समझ में आ गया. We have to keep working on strengths and weaknesses and always keep an eye on opportunity and threats. मेरे पास क्या क्या अवसर मिलने वाले हैं और क्या क्या मेरे पास खतरा भी मेरे पास मंडरा रहा है. ओके, नाउ स्ट्रेंथ में हमारे पास क्या क्या है वो हम देखते हैं. सो पॉजिटिव सेल्फ एंड पब्लिक इमेज. आप the moment you have passed 12th and you have joined a college, I feel that all of us should have a public image. हमारी मार्केट में एक इमेज होनी चाहिए. अनमोल डाइटिशियन, शंकर शेफ, कृति आई डोंट नो व्हाट ही इज परसुइंग, बिकॉज ये हमें समझ में कैसे आएगा. नाउ सोशल मीडिया इज देयर, सो यू हैव टू कीप ऑन हाईलाइटिंग आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपका क्या एम्बिशन है. एवरी डे व्हाट यू आर डूइंग टू रीच नियर टू योर गोल, टू योर एम्बिशन. फाइन. तो if you remember, I always keep on telling everyone, I keep telling Sana, Ishan, everyone that जो भी आपके दिल में है, what you are trying to do in your life, कुछ ना कुछ तरीके से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टोरीज पे कहीं ना कुछ डालते रहो. मीन्स ऑलवेज कीप योर सेल्फ एक्टिव, ऑलवेज कीप योर सेल्फ कैन से अपने प्रेजेंस को महसूस कराते रहो. मैं हर दिन देखता हूं कि भले मैं कोई नया पोस्ट ना लिखूं तो कोई पुराने पोस्ट को ही हाईलाइट करूं, उसको ही थोड़ा सा एक्टिव कर दूं. यानी कि जब भी कोई फेसबुक खोले, इंस्टाग्राम खोले, एक बार दिमाग में उसके धीरज का नाम आना चाहिए. यस, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड धीरज श्रीवास्तव, राइट. तो बहुत जरूरी है कि हम अपने पॉजिटिव सेल्फ एंड पब्लिक इमेज पे हर दिन काम करते रहें. नाउ एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशंस. आपको हमेशा देखना है कि जिस करियर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपके पास वो सारे रिक्वायर्ड एजुकेशन और सर्टिफिकेशन है या नहीं है. नाउ इन दिस करंट सिनेरियो, गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑनलाइन इज वेरी वेरी इजी. ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही आसान है. सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्या हमारे पास में फ्री सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं या बहुत ही कम दाम में कोई सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं. एंड दिस इज द राइट टाइम टू गेन ऑल दो सर्टिफिकेट्स एंड एजुकेशन एंड नॉलेज. फाइन, ये हमारे स्ट्रेंथ में काम आएगा. रिच वर्क एक्सपीरियंस, लाइक
अनमोल शुड नॉट वेट कि जब मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगी, आई विल वर्क अंडर सम डॉक्टर, देन आई विल बिकम डाइटिशियन, और तब मैं कुछ करना शुरू करूंगी। नहीं, व्हेनेवर समवन इज टेलिंग अनमोल बताओ ना जरा कोविड में हम कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन करें, ओके, मेरा अलार्म जग गया। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट उसका क्या एज है, क्या लाइफस्टाइल है, व्हाट टाइप ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स आई कैन सजेस्ट हर। आप लिख के दो उसको, लिख के दो, परस्यू करो। अगर उसने 2-3 काम भी उसमें से किए, थोड़ा फायदा भी हुआ, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ गुड एक्सपीरियंस आल्सो कि भाई मैंने किसी को हेल्प किया। यू नेवर नो दैट if you are helping in a right way, you can also charge them. आजकल किसी को भी किसी डाइटरी सलाह के लिए 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए पे करने में किसी को दिक्कत नहीं है। फाइन। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि पहला अपना एक इमेज बनाओ, एंड द मोमेंट पीपल आर आस्किंग यू फॉर सपोर्ट, फॉर सजेशंस, ऑलवेज यू कैन से दैट ओके मेरा ये चार्जेस है, इफ यू कैन पे यू कैन पे, और मे भी कुछ घुमा के कुछ आप बोल सकते हो, समथिंग लाइक दैट। मीन्स स्लोली दे शुड अंडरस्टैंड कि भाई ये आदमी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है कि मैंने कुछ मांगा और फटाक से उसने दे दिया। ये इसके इसके सलाह की, इसके एक्सपर्टीज का एक अपना एक कॉस्ट है। फाइन। सो स्लोली यू हैव टू मेक अ बैलेंस, और बैलेंस करके आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड, राइट। तो सेम थिंग, हमको अगर डाइटिशियन में आगे बढ़ना है तो वॉट एवर न्यू थ्रेट्स आर कमिंग नाउ, द मोमेंट ब्लैक फंगस हैज कम, द मोमेंट व्हाइट फंगस हैज कम, जितने भी लोग मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, फटाफट दे हैव टू फाइंड आउट कि ये क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है इसके अंदर में, एंड इमीडिएटली दे हैव टू पुट समथिंग इन देयर सोशल मीडिया कि भाई ऐसा करने से हम इससे बच सकते हैं, राइट। मतलब कि जो भी मार्केट में नया चीज आया, अगर वो मेरे स्ट्रीम से, मेरे लाइन से मैच करता है, तो मेरा एक एक्सपर्ट ओपिनियन उसके ऊपर जाना ही चाहिए। फाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम गेनिंग टेक्निकल नॉलेज। कम्युनिकेशन स्किल तो इंपॉर्टेंट है ही। सो यू आर फॉर्मिंग, अभी हाल में देखा मैंने अनमोल, शी हैज पोस्टेड अ वीडियो, शी हैज गॉन टू सम वैक्सीनेशन सेंटर में गई थी, वहां पर कुछ प्रॉब्लम हुआ एंड शी हैज कवर्ड, ओके। देखो मैंने कम से कम मैंने सुना कि शी हैज डन समथिंग। सो व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ चांस, आइदर यू आर राइटिंग समथिंग, यू आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो एंड पोस्टिंग समथिंग, कीप ऑन डूइंग। आपकी आवाज बार बार आपके समाज में लोगों के पास जानी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप स्किल्स, आप जहां पर रहते हैं, योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, दे शुड ऑलवेज लुक एट यू एज अ लीडर कि भाई जब भी मुझे कोई दिक्कत आएगी तो मैं इस क्षेत्र में इससे सलाह ले सकता हूं। लाइक शंकर, ही इज गोइंग टू परस्यू एफ&बी प्रोडक्शन में भी उसका भी दिमाग में है, उसके अगर दिमाग में, तो अभी उसका काम है कि वो ऐसे 2-3 रेसिपीज डालना शुरू करे फेसबुक पे या कहीं पर कि भाई इस कोविड टाइम में कैसे आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। सो आपको एज ए लीडर्स लोग देखना चाहिए कि भाई जब भी हमको सलाह की आवश्यकता है, देयर इज अ पर्सन whom I can look for. नेटवर्किंग एंड कॉन्टैक्ट्स, ये बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। ये हमारा स्ट्रेंथ है, राइट। कि मेरे को कितने लोग इस शहर में जानते हैं, क्या मैंने आज के दिन, मतलब एवरी डे आई शुड एम कि मुझे आज एक नए आदमी से आज मुलाकात करनी है, बात करनी है, दोस्ती करनी है, उसको जानना है, अपने बारे में बताना है, उसके बारे में जानना है। जितना आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग रहेगा, आप फील करेंगे कि आप उतना ज्यादा कंफर्टेबल हैं। आई विल टेल यू, this past 1 month was very tough for me, and lots of things happened, and I realized कि इस COVID-19 में the only thing which was supporting me was my network. जितने लोगों को मैं जानता हूं, अदरवाइज आपका पैसा काम नहीं कर रहा है, देयर इज नो वन सेंडिंग यू द व्हीकल, आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं मिल रही है आपको, राइट, यू नीड समथिंग, कोई आपके पास घर में आने के लिए तैयार नहीं है। द मोमेंट द पीपल नो दैट यू आर हैविंग योर कोविड पॉजिटिव, कोई आपके पास नहीं आ रहा है, देन ओनली योर क्लोज कॉन्टैक्ट्स, योर नेटवर्क, योर फ्रेंड्स, दे आर वर्किंग। फाइन। तो समझ में आया मेरे को कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं, इन दैट केस आपका नेटवर्क, आपका कॉन्टैक्ट, आपने समाज को कितना ज्यादा
टच किया हुआ है, कितना लोगों को आपने इन्फ्लुएंस किया हुआ है, वही आपको हेल्प करने वाला है. सो ये आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, नेटवर्किंग एंड कॉन्टैक्ट. एंड फाइनली इंटरेक्शन विथ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ये एक वापस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आप लोगों ने इस पे अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा. इन एवरी सोसाइटी वी हैव थिंग्स लाइक रोटरी क्लब एंड लायंस क्लब एंड मे बी मारवाड़ी युवा मंच, है ना. अलग अलग अपने अपने छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं. ये बहुत जरूरी है कि हम उन सारे छोटे छोटे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके रहें, क्योंकि दे आर गोइंग टू सपोर्ट मी एंड दे आर गोइंग टू मेक मी स्ट्रांग. जब भी मैं अकेला फील करूंगा, द मोमेंट आई विल टेल देम दैट आई नीड अ सपोर्ट, द सपोर्ट विल कम. फाइन. तो आप ये जितने पॉइंट्स आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, दे ऑल आर योर स्ट्रेंथ. हमें देखना है कि क्या हम इन सारे पॉइंट्स पे हर दिन काम कर रहे हैं. फाइन. क्या हर बीतते दिन के साथ इन सारे पॉइंट्स में हमारा डेवलपमेंट, हमारा ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है. नाउ कमिंग टू द वीकनेस पार्ट, जहां पे हमें उसको ठीक करना है. क्या हमारा कोई नेगेटिव पब्लिक इमेज है या कोई सेल्फ इमेज है, राइट. मतलब बिकॉज ऑफ माई सम, मेरे किसी बोलने से या मेरे किसी स्पीच से, मेरे किसी लिखने से लोगों के मन में कोई नेगेटिव चीजें भी आ रही हैं. ये समझ में कैसे आएगा आपको? आपके जो दोस्त है वही आपको बताएंगे, अरे यार तुमने क्या लिख दिया, बड़ा लोग खराब फील कर रहे हैं, तुमने क्या बोल दिया तुमने उसको. सो ऑलवेज कीप ऑन चेकिंग कि आपके बारे में मार्केट में क्या रिस्पॉन्स चल रहा है, फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, फैमिली वाले क्या सोच रहे हैं. ये आपका वीकनेसेस है. एजुकेशन नॉट इन रिलेटेड फील्ड और एट लोअर लेवल. जो आप एम कर रहे हैं और जो आपने एजुकेशन आप परस्यू कर रहे हैं या जो सर्टिफिकेट्स आपके पास में है, वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे है, ये आपका वीकनेस है. तो आपको देखना होगा कि मैं जिस भी करियर को चूज कर रहा हूं, डू आई हैव द बेस्ट सर्टिफिकेट्स ऑफ दैट फील्ड. अगर वो नहीं है तो मुझे उसको हासिल करना है. लैक ऑफ डिजायर्ड वर्क एक्सपीरियंस. मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट. Every day, apart from my theory part, my study part, I have to also go for work experience. Lack of technical knowledge, इससे हमें बढ़ाना पड़ेगा. Lack of communication skill, ये एक प्रॉब्लम अभी भी है. मतलब अभी भी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. जितने बच्चे मेरे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आई एम थिंकिंग कि कहीं ना कहीं आपको और थोड़ा सा लिखने में और बोलने में आपको आगे आना चाहिए. थोड़ा सा आपको और इसमें काम करना चाहिए, राइट. हम सोचते हैं कि ठीक है भाई, आज आज छोड़ दो, आज आज कुछ भी नहीं करते हैं. बट अगर हमने अपने कम्युनिकेशन पे हर दिन काम नहीं किया, बोथ राइटिंग ऑल्सो एंड स्पीकिंग ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं वो गैप रह जाएगा. सो एवरी डे आइदर यू राइट समथिंग और यू स्पीक समथिंग. कम्युनिकेशन पे काम करते रहना है. लीडरशिप स्किल्स, हर दिन आप देखिए कि आज मैं किसके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं. फाइन. नेटवर्किंग स्किल्स को अपने आप इंक्रीज कीजिए. अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा सामने रखिए, राइट. अभी अभी जब मैं बात कर रहा हूँ इन दिस पैंडेमिक टाइम, तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें आ रही हैं. पीपल आर टेलिंग कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरा क्या गोल रखूं, क्या करूं, मार्केट कब ओपन होगा, क्या नहीं होगा, राइट. लेकिन आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि इन दिस सिनेरियो ओनली, इस सिनेरियो में भी ऐसे काफी लोग हैं जो चुपचाप से अपने गोल पे काम किए जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं. लाइक अभी आईआईटी कब होगा फाइनल नहीं मालूम, नीट कब होगा नहीं मालूम, यूपीएससी कब होगा नहीं मालूम. बट अगर सपोज देयर विल बी 10 लाख यू कैन से एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी, एग्जांपल के लिए दे रहा हूं मैं, उसमें से ऐसे 5 लाख बच्चे होंगे जो चुपचाप से अपने काम में लगे होंगे. उनको पैंडेमिक से, उनको इस सारे प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है. उनको मालूम है कि मार्केट ओपन होगा, 2 महीने में हो, 5 महीने में हो, बट जब ओपन होगा, आई एम रेडी फॉर माई टारगेट, मैं बिल्कुल तैयार हूं. सो हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो गोल, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो हमेशा हमारे निगाहों के सामने होना चाहिए. नाउ विल कम टू फर्स्ट, हमने 2 देख लिया, दीज आर एक्सटर्नल पार्ट्स. नाउ कमिंग टू द सॉरी, इंटरनल पार्ट्स था. नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सटर्नल पार्ट्स. अब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो मार्केट से
ड्रिवन है, वहां क्या क्या हो सकता है? लाइक ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन इन योर फील्ड ऑफ चॉइस, यानी कि जो आपने फील्ड चूज किया है उस फील्ड में अचानक से कोई बहुत ही शानदार ग्रोथ आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि फार्मा कंपनी जो है, आप अगर देखेंगे पिछले 1 साल में शायद फार्मा कंपनी ने इतना बूम कर लिया जितना उनके लिए पिछले 10 साल में पॉसिबल नहीं था। ओके, और ऐसी ऐसी चीजें, ऑक्सीमीटर जैसा एक इक्विपमेंट जिसको मैंने अपने पूरी लाइफ में कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं उसके बारे में, वो ऑक्सीमीटर 700 रुपए का, 800 रुपए का, लोगों ने 2000 में, 2500 में, खैर वो तो अलग चीज हो गया, लेकिन मतलब वो एक सिस्टम सामने निकल करके आया और लोगों ने पैसे बनाए। फाइन। तो ये बहुत जरूरी है कि हमेशा जब भी कोई अवसर आया तो आपको फटाफट देखना पड़ेगा कि जो मेरे पास एक्सपर्टीज है उस एक्सपर्टीज से मैं इस अवसर को कैसे इनकैश कर सकता हूं। आई एम नॉट टेलिंग यू टू अर्न, जो बोलते हैं अनवांटेड मनी आपको अर्न नहीं करना है, लेकिन जो अर्निंग पॉसिबिलिटी है मेरे पास में वो तो कम से कम हम अर्न करेंगे। सो ऑलवेज आई विल कीप एन आई कि जो मेरा फील्ड है उस फील्ड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। लाइक एक और मेरे पास एग्जांपल आ रहा है फॉर अनमोल के लिए कि अभी लोग काफी ज्यादा वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा अभी काम कर रहे हैं। एवरीवन वांट्स टू बी वैक्सीनेटेड, और वैक्सीन लेने के बाद किसी को फीवर आ रहा है, किसी को बॉडी एक हो रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सो नाउ यू शुड गो फॉर अ स्टडी कि अगर आपने वैक्सीन लिया है तो वैक्सीन लेने के 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ते आपको अपनी लाइफ में किस तरह से आपको जीना चाहिए, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आना चाहिए। राइट, यानी कि आपको जो है हमेशा देखते रहना है कि भाई मेरे फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं और कोई भी ऑप्शन मैं मिस ना कर जाऊं। ओके, ओके। एंड एडवांटेज विथ इनहांसिंग योर स्किल्स, अगर सपोज मुझे लगा कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर लगा मेरे को कि अभी अचानक से आप देखोगे अगर तो इसका पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल लैब का जो डिमांड है ना वो काफी बढ़ गया। ब्लड टेस्ट, राइट, आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, क्या क्या टेस्ट जो है वो डेवलप होकर चले आए। नाउ अगर सपोज इफ समवन इज परसुइंग करियर इन डाइटिशियन, सपोज अनमोल वो कर रही है काम, साथ में वो चेक कर सकती है कि क्या कोई ऐसा सिंपल सा कोई ऐसा कोई लैब वाला भी कुछ काम है क्या जो मैं एक सर्टिफिकेशन ले लूं और शायद वो मुझे इसके साथ साथ सपोर्ट करे। मतलब चूंकि एक नया एक सिस्टम निकल करके चला आया है, पीपल आर नाउ गोइंग फॉर मोर टेस्ट एंड मोर रिपोर्ट्स, तो क्या उस फील्ड में भी मैं कुछ कर करके अपना एक स्ट्रांग होल्ड बना सकती हूँ। मतलब मैं जो करंट काम कर रहे हैं उसमें कुछ और भी चेंजेस करके आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। फाइन। जो आपके स्किल्स हैं उस स्किल्स का क्या ट्रेंड चलेगा, अब ये कोविड इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फाइन। तो मैं ऐसा क्या क्या काम करना शुरू कर दूं ताकि आगे आने वाले 2-3 साल में मेरे एक्सपर्टीज से लोगों को फायदा हो, मुझे फायदा हो। फाइन। उसके बाद जो मेरा लोकेशन है नाउ नाउ ये भी एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर आप मुजफ्फरपुर में हैं तो मुजफ्फरपुर में क्या जो मेरे पास एक्सपर्टीज है, जो मेरे पास में नॉलेज है, जो मैंने अपना स्किल्स गेन किया है, क्या उसके थ्रू मैं कुछ डिफरेंट काम कर सकती हूँ। बड़े शहरों में तो बहुत लोग हैं करने वाले, बहुत लोग हैं देखने वाले। फाइन। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, अगर मेरे पास मेरे सारे एक क्लाइंट्स का डेटाबेस है कि अनमोल के पास आज की डेट में देयर आर 50 क्लाइंट्स, और क्या वो सारे 50 क्लाइंट्स को हर हफ्ते कहीं ना कहीं वो टच कर रही है और ट्राई कर रही है कि उनके थ्रू नए क्लाइंट्स को अपने साथ में ऐड किया जाए। राइट। तो ये सारे के सारे हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिन पे वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग। थ्रेट्स क्या है, जैसे कि हमारा जो फील्ड है वो डाउन साइज हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि एजुकेशन को अगर मैं देखता हूं तो एजुकेशन में जो फिजिकल स्कूल्स एंड कोचिंग था वो बिल्कुल डाउन साइज हो गया। कितने स्कूल्स बंद हो गए, कोचिंग बंद हो गया, वो एक थ्रेट है। उसके बाद क्या हो सकता है कि
बहुत सी चीजें जो हैं अब जब पढ़ाई ही अपने आप में बहुत टफ हो गई, तो पेंटिंग और मार्शल आर्ट और बाकी चीजें तो अपने आप खत्म हो गई, राइट? तो हमेशा ये सब हमारे लिए थ्रेट है। कंपटीशन अब कैसा हो गया, पहले होम ट्यूशन मिलना बड़ा आसान हो गया था। अब चूंकि लोग घर बुला नहीं रहे अपने ट्यूटर्स को, तो अगर एक पेरेंट बोलता है कि आई एम नीडिंग अ होम ट्यूटर, तो द मोमेंट आई से दैट आई नीड वन होम ट्यूटर, आई गेट 10 कॉल्स। यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों के पास अभी मार्केट में जॉब नहीं है, ये थ्रेट है। अब इसमें क्या है, अब जो दिमाग लगाएगा वही देखेगा कि भाई मेरे पास एक ऐसा क्या यूनिक चीज है जो बाकी होम ट्यूटर्स के पास में नहीं है। आई हैव टू कीप ऑन इनहैंसिंग। व्हेन आई विल टॉक टू अ पेरेंट, आई विल टेल हिम कि मैं आपके बच्चे को साइंस मैथ्स के साथ साथ ग्रामर भी पढ़ा सकता हूं। सो आई हैव टू गिव हिम समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्स्ट्रा, राइट? टफ कंपटीशंस फ्रॉम यंग। अब ये एक वापस, अगर मैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम एजुकेशन लाइन, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो हमारे ओल्ड टीचर्स थे उनका ही जॉब नहीं रहा, जो नए जो जो लोग हैं वो भी जॉब में नहीं है, मतलब वो भी, उनके पास भी जॉब नहीं है। तो अब इस कोविड टाइम में इतने जगह घूम घूम करके पढ़ाना और जाना, तो क्या हो गया, मेरे पास बहुत दिमाग है, बहुत ज्ञान है, बट बिकॉज एज इज नॉट एट माई साइड, थोड़ा सा मैं ओल्ड हो चुका हूँ और मेरे पास टेक्नोलॉजी उतना मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। सो क्या हो रहा है, मुझे यंग लोगों से काफी कंपटीशन मुझे मिल रहा है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कैसे अपने आप को मार्केट में बना करके रखना है। तो जो मेरे कंपटीटर्स हैं उनके पास क्या स्किल है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, मुझे उससे अपने आप को मैच करना पड़ेगा। मुझे नए नए एजुकेशन और ट्रेनिंग मुझे अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। कंपनीज हायर नहीं कर रही है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि हाउ आई कैन वर्क एज ए फ्रीलांस। सो ये सारे थ्रेड्स आपको अपनी अपनी फील्ड में देखना पड़ेगा, फाइन। और देखना पड़ेगा कि कैसे आप इस सारे थ्रेड्स को कहीं ना कहीं उसको आप काउंटर करेंगे, उसको आप एलिमिनेट करेंगे और उसको आप अपने पॉजिटिव चीजों में कन्वर्ट करेंगे। अब ये लास्ट का 4 पॉइंट है कि अब इसमें आप देखेंगे, पहला है प्रोएक्टिव एक्शंस। प्रोएक्टिव एक्शंस का मतलब होता है कि जो चीजें आज से 1 महीने बाद होंगी या 2 महीने बाद होंगी, उसको पहले से ही समझ करके, पहले से ही एसेस करके अपने आप को तैयार करना। नाउ द मोमेंट आई हैव कम टू नो कि अब ये स्कूल आगे आने वाले 1 साल तक ऐसे ही ऑफ ऑन चलता रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, फटाफट जितने भी लोग टीचिंग से जुड़े हुए हैं, दे हैव टू गो फॉर समथिंग ऑनलाइन। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, राइट? सो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव एक्शंस। रोने की बजाय कि कोविड ने बर्बाद कर दिया, हमें तबाह कर दिया, अब क्या होगा, कुछ नहीं दिख रहा है, वी हैव टू गो फॉर प्रोएक्टिव एक्शंस। ओवरकम और मैनेज वीकनेसेस, जो भी हमारे अंदर कमजोरियां हैं उसको हम निकालना शुरू करें। मॉडिफाई रिसोर्सेज एंड स्किल्स, जो भी हमारे अंदर स्किल है उसको हम मॉडिफाई करें, उसको हम समय के हिसाब से बदलें। और जितनी भी हमको लॉसेस हो रही हैं उसको हम कम से कम करने का प्रयास करें। बहुत सिंपल है। अब देखो, वापस वापस एक चीजें हैं जो कि आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि अब इस कोविड 19 के समय में हर एक की फैमिली कहीं ना कहीं फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुई है। चाहे वो अनमोल की फैमिली हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो, शंकर की फैमिली हो, सना की फैमिली हो, सबकी फैमिली कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुई है। बिकॉज मार्केट उस तरह से अब ग्रो नहीं कर रहा है, मार्केट में चीजें वैसी नहीं है। तो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ रिसोर्सफुल पर्सन, हमें देखना पड़ेगा कि जो मेरे पास मतलब जो मेरे पेरेंट्स के पास में, जो मेरे बड़े लोगों के पास में जो भी इनकम का सोर्स है, हमको उसके अंदर अपनी बजटिंग को लेकर के आना पड़ेगा। as a youth of my family, as a young, you can say, team of my family, मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मुझे अपने घर के खर्चों में कटौती करनी है, राइट? इस पूरे थ्रेट को कैसे मुझे एलिमिनेट करना है, इसके इम्पैक्ट को कम करना है। अगर हम जो काम कल तक कर रहे थे वो काम हम आज भी करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम बेवकूफ हैं, राइट? हमें पूरी फैमिली को बैठ करके अब देखना पड़ेगा कि अगर हमारा बजट कम हुआ है तो कैसे हम अपने खर्चे को, अपने ओवरहेड्स को ठीक करके यहां से हम आगे बढ़ें, ताकि हम एक लंबे समय तक इस चैलेंज को सस्टेन कर सकें।
राइट। तो ये सारे प्रोएक्टिव एक्शंस लेना, अपने स्किल्स को चेंज करना, अपने वीकनेसेस पे काम करते रहना, ताकि जो थ्रेट है मार्केट में, जो प्रॉब्लम्स है, उसका हमको बहुत कम से कम हमको इम्पैक्ट हो और हम इस चैलेंजिंग दौर से बाहर निकल करके हम आ सकें। फाइन, सो नाउ आई एम समराइजिंग। हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई एंड इनहैंस योर स्किल्स, टैलेंट्स एंड एबिलिटीज। आप देखिए कि अभी इस समय में आप अपने किस किस स्किल को इनहैंस कर सकते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आप ऐड कर सकते हैं, जो आपका गोल है उसके उसके तरफ क्या आपका रोड मैप है। लाइक मेरी मेरी प्लानिंग थी कि 2020-21 से आई विल बी चार्जिंग दिस मच फॉर माय वर्कशॉप। मैं इतना चार्ज करूंगा, मैं इतना अर्न करूंगा। नाउ एवरीथिंग इज सैटर्ड, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। जो मैं अर्निंग कर रहा था शायद एक हफ्ते में, उतना मैं अब एक महीने में अर्न कर लूं, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उससे क्या हो गया? उससे कोई अंतर नहीं पड़ गया। उससे सिर्फ क्या हो गया कि जो मेरा रोड मैप है, मेरा जो रोड मैप था मेरे गोल के प्रति, उसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया। अब जो मुझे अचीव करना था सपोज 2 साल में, अब वो 5 साल में आएगा। बट उससे कहीं ना कहीं मेरा गोल और मेरे काम पे अंतर नहीं पड़ने वाला है। मेरा जो गोल है वो है, थोड़ा सा टाइमलाइन जो है वो बढ़ गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। थर्ड पॉइंट क्या है? कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ। अपने स्ट्रेंथ पे आप काम करते रहिए, वीकनेस को आप कम कीजिए। वापस आप देखिए कि अब इस कोविड के साथ साथ अब दुनिया जो है आगे बढ़ने वाली है। एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है कि इंडिया इज गोइंग टू टेक सम 5 years टाइम टू फाइट दिस कोविड। सबको वैक्सीन लगने में, हर्ड इम्यूनिटी आने में समय लगने वाला है। तो हमें अभी से ही उसी के साथ जीने का, अपने गोल को मैच करने का, अपने करियर को मैच करने का प्रयास करना पड़ेगा। फाइन। और जितने भी हमको इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर कैसा होगा, किस तरह के जॉब्स रहेंगे नहीं रहेंगे, उसके हिसाब से हमको अपने करियर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और तब जा करके हम, थोड़ा सा भले ही हमें लेट लगेगा, बट जो हमने अपने फ्यूचर को लेकर के डिसाइड किया था, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। राइट। सो आप ये जो है, ये फटाफट जो है आप क्या करेंगे, आप आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपने एक बार इस करंट सिनेरियो को देखते हुए गो फॉर योर स्ट्रेंथ, चेक योर वीकनेसेस, चेक कि आपके फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या थ्रेट है, एंड देन एक 5 साल की स्ट्रेटजी सबके पास में होनी चाहिए। चाहे वो अनमोल हो, चाहे वो शंकर हो, चाहे वो कृति हो, कि 5 साल में मैं कहां पहुंचने वाला हूं। हो सकता है कि पहले वाले सिनेरियो में 2020 के पहले हम वहां पर पहुंचते 2 साल में, अब शायद पहुंचने में हमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन उससे मेरे एफर्ट में कहीं कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। राइट। और हमें क्या करना है, कब करना है, इसे कौन करने वाला है, क्या मेरा टाइम टेबल रहने वाला है, क्या डेडलाइन रहने वाला है, मैं कौन सा सर्टिफिकेट कब ऑब्टेन करने वाला हूं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राइटिंग में आनी चाहिए। एक बार बैठ करके इस चेंज्ड सिनेरियो को दिमाग में रखते हुए वापस अपने पूरे फ्यूचर प्लान को आप लोग एक बार चेक कीजिए कि अब मेरा रिवाइज्ड फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है, मैं कैसे अपने लाइफ को लेकर के आगे बढ़ने वाला हूं। एंड आई विल बी सो हैप्पी इफ यू ऑल विल गो फॉर स्वॉट एनालिसिस। आप लोग अपने अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पे आप लोग काम कीजिए। एंड द मोमेंट यू आर रेडी with your personal SWOT analysis, you can drop me a message and we can go for one-on-one discussion on SWOT analysis कि आपने क्या बनाया है, क्या डाउट्स है आपके मन में। और आई वांट कि एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर में जितने बच्चों ने इस सेशन को अटेंड किया है, दे ऑल शुड बी फुल ऑफ एनर्जी। ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ाई हैं, बट वी आर बैक ऑन ट्रैक। और हम थोड़ा सा देर या सबेर अपने एम को, अपने लक्ष्य को वापस हम प्राप्त कर लेंगे। एंड आई एम विथ ऑल ऑफ यू। ठीक है। सो आई विल वेट फॉर Thank you, योर sir. पर्सनल SWOT एनालिसिस एंड आई विल लुक फॉरवर्ड कि आप लोग मैसेज ड्रॉप करेंगे एंड विल गो फॉर one-on-one डिस्कशन ऑन योर पर्सनल SWOT एनालिसिस। कोई क्वेश्चंस आपके पास में रहेगा, यू कैन ड्रॉप मी ऑन माय व्हाट्सएप
एंड जब हम बात